Honorable Chief Guest, Dr. Sudhir Kumar Mishra, respected Dean of Instruction, Professor Rajesh Miss, all head of the departments, student advisor, distinguished faculty members, distinguished resource persons, distinguished participants, and dear students. आज एक ऐतिहासिक दिन है। जिस चांद को देखने के लिए हम तरसते थे ना, वो चांद हमारे सामने उपस्थित है। ये वो चांद है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि शीतलता के लिए फेमस, मगर हमारे जो चांद यहाँ पे आज उपस्थित हैं वो मिसाइल दागने के मामले में नहीं है। और वो मिसाइल पर्पजफुली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कंट्री के हित में, और उससे भी बड़ा हमारी शिक्षा भी है। इसीलिए जैसे ही हमने निवेदन किया, सर ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। सर, हृदय से हम आपके आभारी हैं, संस्थान के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होने के नाते, और हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये बहुत ही लालायित थे कि सर कब आएंगे, कब हम सर को देख पाएंगे। सुनना तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बच्चों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी एक बार करतल ध्वनि से सर का स्वागत कीजिए। डॉक्टर आनंद आर्या जी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, ऑलरेडी उन्होंने आपके बारे में जानकारी दे दी है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जरूर मुझे बतानी चाहिए। और उनमें से डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी इज द फॉर्मर डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल ब्रह्मोस DRDO Ministry of Defense and CEO and MD BrahMos Aerospace. He has led highly motivated and technically competent team of engineers, scientists, and technicians at various work centers, successfully developing and delivering the world's best supersonic cruise missile to meet the requirement of Indian Armed Forces. इसीलिए मैंने कहा कि सर वो चांद हैं जो मिसाइल के लिए जाने जाते हैं। और आपको एक बात और यहाँ मैं बताना जरूर आवश्यक समझता हूँ कि सर ने इस फील्ड में जब एंट्री की थी, तो एंट्री कराने वाले हमारे फॉर्मर महामहिम डॉक्टर APJ कलाम थे। उन्हीं के साथ सर ने काम भी किया। कल सर से चर्चा हो रही थी, तो हमें सर के साथ साथ में आज APJ कलाम साहब की भी याद आ रही है। डॉक्टर मिश्रा इज ए ग्रेजुएट ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर, M.Tech in Mechanical Engineering from Indian Institute of Technology Madras and PhD from National Institute of Technology Warangal. He has more than 37 years of research and development experience in the area of missile technology, production technology, technology management, and defense diplomacy. His technical expertise and contribution has resulted in the realization of several DRDO missile programs. His mind-to-market approach has led to design, development, production, and products support encompassing complete product life cycle of BrahMos weapon system. Under his leadership, Team BrahMos achieved newer capabilities and various for land to land, sea to land, and air to sea and land applications. He headed the BrahMos Air version program, leading to successful flight test of BrahMos from Sukhoi 30 MKI. Fighter aircraft against sea and land target.
realization of BrahMos A is an historical achievement for the India, becoming first country in the world to have such unique capabilities. I hope we must. He has achieved unique distinction for achieving India's first major weapon export order to Philippines. एक्सपोर्ट का जो फिलीपींस का लिया आपके द्वारा, ये भी एक फर्स्ट की था। नॉर्मली हम खरीदते रहते हैं, मगर हमारे खरीदा गया पहली बार, ये बहुत बड़ा क्रेडिट मानता हूँ मैं देश के लिए, सर के लिए पर्सनल है, मगर हम सभी देशवासियों के लिए। He interacted and coordinated with several ministries and PMO to set up procedures, mechanisms and processes for defense exports. He is academician of Russian Academy of Cosmetics, and he is a fellow of Royal Aeronautical Society UK, Aeronautical Society of India, Institution of Engineers, India, the Institution of Electronics and Telecommunication Engineers, Indian Institution of Production Engineers, and Center for Excellence in Project Management, New Delhi. He is a member of many national and international professional societies. I am not reading all, many more names are there. He has been awarded with several honorary doctor degree, and one of them is from Soviet University, other one is from People's University, other one is from Sri Ram Swarup Memorial University, an honorary degree Doctor of Literature from Sage University in Madhya Pradesh. He has been awarded with the DRDO Scientist of the Year Award by the Prime Minister of India. Distinguished Award Alumni 2018 by IIT Madras. Eminent Engineer Award by Institution of Engineers. So, the title is Scientific Appreciation. This title is just for the sake of giving a title, but it will be a different presentation. So, thank you. और दूसरी बात है, मुझे आपके बीच में आकर बहुत खुशी है, खास करके सीवी रमन जी के रमन इफेक्ट जिस दिन हुआ था उस दिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों को महसूस होनी चाहिए कि जो रमन थे, सीवी रमन, उनको ये जो नोबेल प्राइज मिला था वो उनकी रिसर्च जो उन्होंने इंडिया में की थी उसके कारण मिला था। एक्चुअली में हम लोगों को ये समझना चाहिए कि सिक्योरिटी होती क्या है। सिक्योरिटी बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल। जब इंटरनल की बात करते हैं तो हम शुरू करते हैं सोशल सिक्योरिटी, और पिछले कुछ दिनों में तो आप लोगों ने देखा कि मेडिकल सिक्योरिटी इट बिकेम लाइफ थ्रेटनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। फिर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, उसके बाद जो एक सोशल सिक्योरिटी को कह सकते हैं आप, जो नेशनलिज्म था, इट वाज ए थ्रेट टू द इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, और वो एक सोशल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट था। उसके अलावा जब हम देखते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी, तो क्या सिर्फ वो बॉर्डर्स पर ही होती है? नहीं, वो तो एक तो होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है। फिर उसके बाद देयर आर मेनी पीपल हु विश इंडिया टू बी dismembered into many pieces. तो सिक्योरिटी इज ए वेरी बिग सब्जेक्ट, और आज जो है हम उसमें से डिफेंस सिक्योरिटी लेंगे, जो कि वो मेरा सब्जेक्ट है, और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में दूसरे विषय में भी बात करूं। तो आई वुड लाइक टू गो अहेड विथ दिस, एंड आई एम टोल्ड दैट हियर वी हैव students from science, technology, arts, commerce, I mean humanities, and various other departments. तो what we'll do, अगर आपको कोई question है तो आप उसको अपने साथ रखिए। At the end of the program, we will have a interactive session, और उसमें आप पूछ सकते हैं कि अगर कुछ हो रहा है हमारी सराउंडिंग में तो उसका हमारे ऊपर implication क्या है और क्यों है और उसका रीज़न क्या है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं।
और यहाँ पर बहुत सारे एकेडमिशियंस हैं, तो हम लोग जरूरी नहीं है कि हर बात पर सहमत हों, क्योंकि जिस देश में लोग एक ही बात पर सहमत हो जाते हैं तो उस देश की प्रगति रुक जाती है। तो कंट्री में डिबेट होना चाहिए, कंट्री में एक जो व्यूज हैं उनके ऊपर बताना चाहिए कि आप गलत हैं या आप सही हैं, और अगर गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है। तो एक मत होना एक अच्छी बात नहीं है। इट इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी, इट इज डेंजरस फॉर साइंस, इट इज डेंजरस फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन। तो हमको अलग होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग एक हो गए, मतलब कि समुद्र एक हो जाता है ना, तो उसमें फिर कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, बस एक ही लेवल पर रहता है, तो हमको वो नहीं बनना। तो दिस मैसेज इज फॉर स्टूडेंट्स। आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हैं, आप लोगों के लिए नहीं है। तो कमिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे देश में जब भी बात होती है कि सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस क्यों होना चाहिए? सेल्फ रिलायंस इसलिए होना चाहिए कि आप एक सिनेरियो देखिए, आपके पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो हैं फ्रांस से, इजराइल से, यूएस से, रशिया से, और भी छोटे छोटे देश हैं उनके पास से। आप अगर लड़ाई शुरू करते हैं किसी के भी साथ, तो किसी ना किसी का इंटरेस्ट हर्ट होगा। जब वो इंटरेस्ट हर्ट होगा तो आप उनके जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रुक जाएगी। आपको जरूरत पड़ेगी, आजकल सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को आप कहीं से भी बैठ के कहीं भी बंद कर सकते हैं और आपका जहाज ही नहीं उड़ेगा, आपकी मिसाइल नहीं उड़ेंगी, आपके टैंक नहीं काम करेंगे। तो इसलिए जरूरत होती है कि आप सेल्फ रिलायंट बने। और सेल्फ रिलायंस की जो जर्नी होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, उसमें बहुत समय लगता है। और लोग सोचते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी को आप 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में बड़ा कर सकते हैं। नहीं, इट्स ए कम्प्लीटली रॉन्ग कंसेप्ट। एसएनडी को और जो सेल्फ रिलायंट है इसको अचीव करने में आपको डिकेड्स लगेंगे। 70 साल तो हमारे हो चुके हैं और शायद 20, 25, 30, 40 साल और लगेंगे। उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी साइंस की, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ह्यूमैनिटीज़ की। आई टेल यू व्हाई ह्यूमैनिटीज़ की, मतलब एक्सीलेंस इन एवरी सब्जेक्ट वी नीड, देन ओनली वी विल बी एबल टू बिकम सेल्फ रिलायंट। तो ये तो थ्योरेटिकल एक डेफिनेशन है सेल्फ रिलायंस की। और डिफेंस में क्या होता है, बेसिकली 3-4 मेन टेक्नोलॉजीज होती हैं। एक टेक्नोलॉजी होती है प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म यानी कि आपका वॉरशिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, सबमरीन्स हो गई, टैंक्स हो गए। तो country should be capable to manufacture, design and manufacture that in our own country. This is one. दूसरा होता है सेंसर्स। सेंसर्स यानी कि रडार्स, जो मिसाइल में सीकर्स लगते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्विलेंस टेक्नोलॉजी होती है, कैमरास होते हैं, जो वो कैमरा जो हंड्रेड्स ऑफ द किलोमीटर या सैटेलाइट से थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर देख सके, तो दे आर द सेंसर्स। सो कंट्री शुड बी एबल टू डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर दो सेंसर इन द कंट्री। थर्ड आता है आपका वेपन्स। वेपन्स में आता है, अगर आपके पास टैंक है, अगर आपके पास शेल्स नहीं है, या आपके पास एयरक्राफ्ट है, आपके पास मिसाइल नहीं है, तो हाउ विल यू फाइट ए वॉर? तो आपको जरूरत पड़ती है वेपन्स की। फिर बात आती है कि अगर हमारे सोल्जर्स जब लड़ रहे हैं फ्रंट में, और उनके पास सोल्जर को डिफेंड करने के लिए या ऑफेंड करने के लिए एक अगर ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपका जो ह्यूमन लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो वी नीड ए ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी। तो दीज आर द बेसिक टेक्नोलॉजीज जो हमको कंट्री में बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और तब हम बनेंगे सेल्फ रिलायंट। तो ये सेल्फ रिलायंट जो है, डॉक्टर कलाम ने बहुत सिंपल शब्दों में बोला था कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज पावर नेसेसरी फॉर ए वाइब्रेंट एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो मैंने इसी बात को थोड़ा सा बढ़ा के आपको बताया है। देखिए, अगर हम हिस्ट्री देखें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बात है 1792 की, श्रीरंगपट्टनम वॉर।
तो श्रीरंगपट्टनम वॉर में क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान की जो आर्मी थी, they have used a rocket, and that rocket was for about 2-3 kilometers, and first time in the history of war a rocket has been used. Although Chinese have invented this rocket thousands of years back, lekin in the war first time Tipu Sultan has used it, and he has used hundreds of the rockets. ये rockets बड़े simple rockets हुआ करते थे. इन rockets में क्या हुआ था कि about 1.5 kilogram propellant जो होता था वो at the end of a bow वो रखते थे, उसको propellant को ignite करते थे और वो हवा में जाता था 2-3 किलोमीटर. और पहले जो है war जो है वो horses, elephants और soldiers ये लोग लड़ा करते थे, तो इनके ऊपर गिरा. there is a factor of unpredictability. तो जब unpredictability होती थी तो the moment they used to see some fire is coming towards them, they used to run away. And in the olden times, if the enemy has run away, you have won the war. So the things were very simple. Now, these rockets, Tipu Sultan lost the war. When he was defeated, maybe due to some other reasons, but when he was defeated, then Britishers, they have seized those rockets. So when they have seized the rockets, they have taken it to England, and they had a scientist called William Congreve. So this William Congreve has studied, he did the reverse engineering and came out with Congreve rockets. And these rockets were used in several wars by the Britishers. And it has been used in the US Civil War also. तो US Civil War में अगर आप उनकी 5th line है जो उनके नेशनल एंथम की, तो उसमें लिखा हुआ है कि and the rockets red glare, the bomb bursting in air. तो ये जो रॉकेट्स रेड ग्लेयर हैं ये टीपू सुल्तान के रॉकेट्स थे which were modified, re-engineered, and India was subjugated by the Britishers. So there was no development in the science and technology to come out with the rockets. तो जब बात करते हैं रॉकेट्स की, तो in fact we were the first movers to come out with the rockets and missiles. There is one more very interesting thing. The interesting thing is, everybody feels that so-called developed countries, they are very great in the science and technology, and that's why they are coming out with moon mission, space mission, and so many other initiatives. It's not so. The history is slightly different. The history is Germans, they were the first to came out with the rockets of V series, V1, V2, and when the Germans were defeated in the Second World War, the scientists, you see, during the Tipu Sultan, they have collected the rockets from India and did the research. But after the defeat of Germany, the German scientists were divided into two groups. The first group was taken by the US, the second group went to Soviet Union. Now, they have given it a very interesting names, like Americans, they gave a name Operation Paperclip, and under Operation Paperclip, they hunted the college, universities, research institutes of Germany, and seized the scientists and their families, taken them to US and given them good position, money, salary, houses, and told them to do the research and development. And Russians, they had Operation Oso Anikin, and under this they have taken the German scientists to Russia. Now, a very interesting name is von Braun. This von Braun whole team, von Braun is a scientist who led moon mission. He is the guy who has put a man, Neil Armstrong, on the moon. So he moved from Germany to US. So, and Americans came out with series of rockets. All the names are given here: Redstone, modified Redstones, the Saturn series, and that led to ultimately moon mission. And Russians, they came out with the liquid propellant technology because of Germans, and ultimately they became the first to put a man in the orbit. So
Sometimes you don't need organic growth. Sometimes you can do the transplantation also of the science and technology. You see, we had a great opportunity when the Soviet Union broke, and we could have brought a lot of scientists from ex-Soviet Union countries to India. We missed the opportunity, and the second opportunity is going on. You know, the Ukraine war. It's a lot of people are displaced, so we could have had a take an initiative to get the guys to India and ask them to do the research and development in our field. We didn't do that. So we should not become the nation of missed opportunity. Okay. So maybe someday we will realize that we can adopt this strategy also. So usually what happens in the science and engineering, students don't read humanities. They don't read books on history, political science, and I always tell that it should be both ways. The humanities student should read books on science and technology, and science and technology should read the books on the humanities because it's complementary. And possibly the guys, the decision makers who are sitting in the powerful position, they don't have idea about science. Or the scientists don't have the idea about history. That's why we are leading to missed opportunities. So there is another event which we really encashed. The event was the Iraq War. In 1991, when Iraq invaded Kuwait and US armed forces came to the rescue of Kuwaiti people, that time one interesting thing happened and Indians were watching. Thankfully, we had scientists like Dr. Kalam and his team. So we were watching that US naval forces, they brought their aircraft carrier to Gulf, and from the Gulf they fired thousands of cruise missiles into Kuwait, into Iraq. And I want to tell you that Iraq was at that time was very powerful nation. They had oil money and they purchased a huge amount of armory from Soviet Union as well from US. And every square meter of Iraqi land was protected by the air defense. So they had well-planned president and they spent huge amount of money. But they didn't realize that cruise missiles will come in thousands and will destroy their strategic capability. Strategic capability यानी कि जो भी उनके ammunition dump था, oil dumps थे, bridges थे, roads थी, command centers थे, major hospitals थे, उन सबको destroy कर दिया. Thousands of missiles within 24 hours. और जब सब खत्म हो गया, तो US land forces they simply came and walked the Iraq in 24 hours. Within 24 hours, Iraq surrendered. The same thing happened in 2003 also, but the difference was that when Dr. Kalam went to Russia in 1993, so Russians were broke because Soviet Union was no more. So he said, we want to make a missile. We have a half-completed engine, and majority are young in this room. So I want to remind them that in the 90s, India had to deposit the gold in the Bank of England because we had hardly 1 week of oil in our country. तो आप लोग काफी लोग वॉच कर रहे होंगे ना कि पाकिस्तान के पास 3 दिन का ऑयल बचा है, 1 हफ्ते का ऑयल बचा है, तो हमारी हालत भी ऐसी ही थी उस समय. So we had 1 week of oil in our country. तो फिर जब ऑयल खरीदना था तो आपके पास डॉलर चाहिए, तो हमने जाके अपना गोल्ड जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड में डिपॉजिट किया, वहां से मनी ली और फिर ऑयल खरीदते थे. तो इन दिस बैकग्राउंड डॉक्टर कलाम एंड हिज काउंटर पार्ट दे वर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग द बेस्ट फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड क्रूज मिसाइल, and it was an idea, and that's how we started thinking that why not we also become capable of developing the cruise missile in the country, or the idea of BrahMos took birth that time. And in one of the break they have taken Dr. Kalam and showed him the half engine. Then Dr. Kalam brought them here and he has showed them the technologies which we are already having in our country. We thought we will join the missing links
we will join the technology which complement each other and come out with a missile system. The idea to tell you this is not to narrate history or not to tell you something great about it, but what I want to tell you is you start with a concept. You start with a concept, it will take few years or decades, but you have a chance of getting successful. And once you are successful, you will be able to contribute greatly to yourself and to the and you generate a revenue for the country. You see, generating revenue for the country is not a bad idea. It's not a bad thing, and that's how the present government is promoting the startups. That you come out with a startup, hundreds of the startup have to be there, and one day they will become a billion-dollar company. So that's what is the idea. Or so this was the first startup which I have showed to you. It was the first startup which we started in '93. Now we came out with a BrahMos model in which the Russian they became the first FDI with 49.5% equity. We came out with 50.5 equity, and this joint venture we divided the work. That Indian will have this much work, the Russians will have that much amount of work. So and we came out with a financial investment by first time in the country by any foreign government. And subsequently, many FDIs have happened, but it was the first FDI in the defense. So, some interesting thing about the BrahMos. The interesting thing about the BrahMos is that we thought we'll make it a universal missile, which can be launched from ship, land, aircraft, submarine. Then we thought that it must have a various trajectory. Trajectory means it can, follow different path. Then the third is it should be able to engage all kind of targets. जितने भी target हैं, सबको engage करना आना चाहिए उसको. देखिए ship moving target होता है, लेकिन bridge जो है stationary target है. तो आपको capable होना चाहिए दोनों पे engage करने में. और इंडिया के अंदर जो weather conditions हैं, they are very different. Weather condition आपका desert है, आपके forest है, आपके पास snow है, that to Ladakh, very high mountains, world highest mountains you have. Then you have sea, very big. Then you have threats from everywhere. You have threats from sea, you have threats from forest, desert. So your missile should be able to work in all the weathers and environment. You see, the without warhead is on one day at one place, and you can see the big, a kind of ditch at the center of this square, which was almost 300 kilometers away with warhead. So the repeatability, first day without warhead, the second day with warhead, it has gone to the same place. Now, just to tell you the कि होता क्या है जो आप हाथ से गन इस्तेमाल करते हैं ना, पिस्टल, राइफल, तो जब ये 100 मीटर या 200 मीटर जाती है तो उसका डेविएशन होता है 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, समटाइम 10 मिलीमीटर ऑल्सो, द 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में हिट कर दिया तो आपने बुलसाई कर लिया, बुलसाई मार लिया. Just imagine a missile traveling for 300 kilometers, 500 kilometers, 1000 kilometers and hitting the bullseye. The kind of self-correctional mechanism, the kind of electronics, the kind of structure, the kind of knowledge go into it is of a different level. तो तभी लोग कहते हैं कि मिसाइल बनाना बहुत मुश्किल काम है. अच्छा, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. एक्चुअली में हर टेक्नोलॉजी का ना एक जमाना होता है, एक समय होता है, उस समय के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाती है. तो जैसे अभी जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी, मेरे ख्याल से आई कैन फोरकास्ट की शायद 15 साल, 20 साल, क्या हो सकता है 10 साल और चले. उसके बाद जो यूएवीज आ रहे हैं ना, आपने देखा ना यूक्रेन वॉर में यूएवीज आ रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी $multi-million मिसाइल भेजने की क्या जरूरत है छोटी छोटी चीज़ों के लिए. तो जैसे ब्रिजेस हैं तो हम अपना यूएवी भेज देते हैं, जो सुसाइडल यूएवी होगा जाके डिस्ट्रॉय कर देगा, सेम काम करेगा बहुत कम सस्ते में. और एनिमी जो है, अगर मैंने 1000 ड्रोन भेजे हैं, सुसाइडल ड्रोन, और 1000 ड्रोन को वो मार गिराना चाहता है तो उसको भी 1000 मिसाइल भेजनी पड़ेगी. मतलब जो वॉर फाइटिंग है ना, वो बड़ी अनइकोनॉमिकल हो गई है, क्योंकि आप 1000 मिसाइल भेजेंगे, एक मिसाइल की कीमत होगी $4 मिलियन, $5 मिलियन, तो आपके $5000 मिलियन तो वही खत्म हो गए टू न्यूट्रलाइज वन अटैक.
नाउ द सेकंड इज कि आप आजकल क्या होगा कि थोड़े दिन बाद, अभी भी हो गया है काफी कुछ, लेकिन भविष्य में भी होगा कि हाई पावर वेपन्स आ रहे हैं। हाई पावर वेपन्स मतलब कि जो लेजर बेस्ड होते हैं या हाई पावर माइक्रोवेव बेस्ड होते हैं। ये वेपन्स क्या करेंगे कि आपकी अगर मिसाइल आ रही है तो आप हाई पावर लेजर उस डायरेक्शन में कर दीजिए तो वो मिसाइल वहीं पर गिर जाएगी। तो ये जो हाई पावर एनर्जी है, हाई पावर लेजर है, ये आएगी। और इसके बाद जो है एक्चुअली में जो फ्यूचर वॉर होगा, फ्यूचर वॉर अभी बल्कि जो हो रहा है और आगे जो होगा, तो दैट विल हैव अदर डायमेंशंस यानी स्पेस का डायमेंशन उसमें होगा, दूसरा साइबर का डायमेंशन होगा, और फिर उसके बाद जो डीप अंडर वाटर होता है उसका डायमेंशन होगा। और आप इमेजिन करिए कि आपका जो जितने सैटेलाइट्स हैं जो आपकी बैंकिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं और वो खत्म हो जाए, तो एनी कंट्री विल कम ऑन टू द नीज, क्योंकि आपका सारा का सारा डिजिटल पेमेंट है, सब यूपीआई पेमेंट है। आप नहीं कर पाएंगे तो आपकी कंट्री तो पूरा नीज पे जाएगी। तो ये सिर्फ अटैक की बात नहीं, आपको अपने असेट्स को डिफेंड भी करना है, आपको अपने असेट्स को डिफेंड करना है, और आपको अपनी जो स्पेस पावर है उसको बढ़ाना भी है। स्पेस पावर बढ़ाने के लिए आपको आप देखिए गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है प्राइवेट इंडस्ट्री को, कि पहले तो क्या था सिर्फ इसरो करती थी, अब हमने एक और एजेंसी बनाई है इन स्पेस, ये एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, और ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी सबको प्रमोट करती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को लॉन्चिंग के लिए और सैटेलाइट्स को बनाकर डिप्लॉय करने के लिए, और उसके बाद जो भी सर्विसेज होते हैं उनको यूज करने के लिए। तो यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि जो रॉकेट भेजना और सैटेलाइट बना लेना, डिप्लॉय कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली इसमें जो रेवेन्यू आता है ना, ये लगभग 7-8% ही आता है। जो बेसिक रेवेन्यू आता है वो होता है यूटिलाइजेशन ऑफ द सैटेलाइट सर्विसेज, तो वो है 90-93%। तो वो टेक्नोलॉजीज हमको डेवलप करनी है जिससे हमारा जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम हो। तो वो कब होता है, जब आप मैप को या जो भी सर्विलेंस है, मतलब जो फिनेंशियल्स हैं, फिनटेक जो आजकल काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, उसको आप यूज करते हैं, तब होता है। तो दूसरी बात हुई साइबर की, तो सिर्फ स्पेस में अगर आप पावरफुल हो जाएंगे और साइबर में नहीं है तो फिर अनदर प्रॉब्लम है। तो साइबर टेक्नोलॉजी जो है वो आपके जितने मोबाइल हैं, आपके पास जितने मोबाइल बने, दे आर लाइक ग्रेनेड्स हैं आपके पास, हैंड बॉम्ब्स हैं। इनसे आपके बारे में सब कुछ मालूम किया जा सकता है, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, आपकी सोशल, हर तरीके की लाइफ। आप सोचेंगे कि आपका फोन रखा हुआ है, बंद है, लेकिन आपके फोन का जो कैमरा है उसको हम आपके बगैर नॉलेज के ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपकी बात सुन सकते हैं, आपका ऑडियो। आप सोचेंगे कि मैं तो सिविलियन हूँ, क्या फर्क पड़ता है मेरे से, लेकिन आप इमेजिन करिए कि आपकी प्राइवेट पिक्चर्स को कोई लेके आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपकी जो सोशल लाइफ है उसको कोई खत्म कर सकता है पूरी, आपकी फैमिली में जो है वो, मतलब आपकी जो इमेज है आपके बच्चों के सामने, हस्बैंड के सामने, वाइफ के सामने, वो खत्म कर सकता है। तो ये सब कर सकता है। इसके अलावा वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो बैटरी होती है जो आपको पावर देती है, दैट बैटरी कैन बी एक्सप्लोडेड आल्सो ऑन कमांड। तो वो दैट इज अनदर फील्ड, उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है और इट विल बी क्रिएटिंग इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ एवरीबॉडी। तो लेट्स क्रिएट ए पॉजिटिविटी कि आप बिल्कुल केयरफुल रहिए, और आप सबको साइबर टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे करना है, और कैसे डिफेंड करना है, कैसे ऑफेंड करने की आपको जरूरत नहीं है, आपसे डिफेंस करिए अपने को, वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड आती है अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज। अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज अभी जो हमारा बायोफ्यूल है जो जमीन पर है, डेजर्ट में, वो तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और यूएस भी जो है ये आप लोगों ने शेल ऑयल का नाम सुना होगा, SHALE, शेल ऑयल। तो क्या हुआ था कि शेल बेसिकली अंडर द वाटर 8,000-9,000 मीटर्स जो है वो हार्ड स्टोन रहते हैं जिनको ड्रिलिंग करके और उसके अंदर से ऑयल निकालते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो इस समय यूएस के पास बहुत ज़्यादा है, रशियंस के पास भी है, बट यूएस हैव मास्टर्ड द
इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दिस। तो आज से 5 साल पहले यूएस के पास ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता था। टुडे जो है ही इज एक्सपोर्टिंग द ऑयल। व्हाई? दे आर एक्सपोर्टिंग बिकॉज ऑफ दिस शेल ऑयल टेक्नोलॉजी। अब नाउ आपने शेल ऑयल बना दिया तो उसको प्रोटेक्ट भी तो कर रहा है आपके जो रिसोर्सेज हैं, तो यानी कि अंडर वाटर टेक्नोलॉजी भी आपकी डेवलप होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि वी नीड टू बी मास्टर इन ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी, और जब तक हम उस पर नहीं होंगे तब तक यू आर वल्नरेबल। और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नोबडी वांट्स एनी अदर कंट्री टू बिकम पावरफुल, नॉलेजेबल और सेल्फ रिलायंट। तो यू आर वर्किंग अगेंस्ट द विशेस ऑफ योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स और सो कॉल्ड एनिमीज। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट गेम। और ये मिसाइल जब हमने शिप में डिप्लॉय की थी तो उसने क्या किया था, उसमें एक वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कॉम्बैट वर्जन है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, नॉन कॉम्बैट वर्जन ट्राई करते हैं। तो ये कॉम्बैट वर्जन है। ये एक 5000 टन का शिप था इंडियन नेवी का डिस्कार्डेड, जिसको हमने हिट किया, और 4 मिनट में जो है ये वॉरशिप वाज संक। एंड तो एक नेवी के एडमिरल थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि बिकॉज ऑफ यू फॉर 1000 किलोमीटर ऑफ रेडियस अराउंड माई शिप एवरीबडी इज माई फ्रेंड। तो आपका फ्रेंड जो होता है सिर्फ आपकी गुडविल के कारण नहीं होता, आपके डर के कारण नहीं होता आपका फ्रेंड। तो वो डर के कारण जो है उनके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अराउंड हिज शिप एवरीबडी इज फ्रेंड। तो जब आप कंट्री को पावरफुल बनाते हैं तो उसकी फ्रेंड्स का जो नंबर होता है बढ़ता जाता है, और जो वीक कंट्री होती है उसके सारे एनिमीज ही होते हैं, उसके फ्रेंड्स कोई भी नहीं होते, एवरीबडी इज अपॉर्चुनिस्ट। तो दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। एक जब हमने एयर वर्जन डेवलप किया था, तो एयर वर्जन का यू सी सुखोई 30 से हमने उसको ड्रॉप किया। तो ये वीडियो में आप देखेंगे कि एक है एंटी शिप वर्जन और दूसरा है लैंड अटैक। तो ये टारगेट था, टारगेट को जाके तो लैंड पर हिट किया। दूसरा शिप एंटी शिप था, तो इट वाज डिफिकल्ट टू टेक अ लाइव मूवी। तो फिर उसके बाद जब हिट किया तब ये उसकी पिक्चर है। इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है मैं आपको बताता हूँ। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि नाउ आप इस मिसाइल को सुखोई 30 की रेंज होती है 3400 किलोमीटर्स, इट कैन गो एंड कम बैक तो 1700 किलोमीटर्स। तो आप इसको रिफ्यूल कर दीजिए जाते समय, और आते समय भी मिड एयर रिफ्यूलिंग कर दीजिए। तो इसकी रेंज पूरा यूरोप, पूरा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब आप जो है ऑलरेडी यू आर इंडिया पैसिफिक पावरफुल नेशन। और इंडियन एयरफोर्स ने हमारे साउथ इंडिया में एक स्क्वाड्रन भी डिप्लॉय कर दिया है सुखोई 30 के साथ। तो जितना भी एनर्जी सिक्योरिटी जो है, तो एनर्जी सिक्योरिटी फॉर इंडिया एंड फॉर आवर फ्रेंड्स इन द फॉर ईस्टर्न नेशन, वी आर इंश्योरिंग कि आपको हम सिक्योर करते हैं कि आपकी ऑयल लाइंस जो हैं वो सेफ सिक्योर रहेंगी। तो अब आप यूएस से या बाकी कंट्री से खरीदने की जरूरत है, आप हमसे भी खरीद सकते हो वेपन्स, क्योंकि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई, आप इमेजिन करिए कि मतलब मिलियंस ऑफ बैरल का कोई टैंकर जा रहा है टू ए फ्रेंडली कंट्री, मे बी टू इंडोनेशिया और टू फिलीपींस, और उसको कोई आके थ्रेट करता है, पाकिस्तानी थ्रेट करते हैं या अफगानिस्तानी या ईरानी थ्रेट करते हैं, वी नॉट अलाउ टू पास। तो वी गारंटी कि we will utilize their threat and we will ensure passage of your tanker from here to your country. तो यूजुअली हमारे दिमाग में क्या होता है कि डिफेंस में जो मनी जा रही है वो वेस्ट हो रही है, हाँ, इस भाई कोई लड़ाई तो होती नहीं है। लेकिन देखिए, जो वेपन्स हैं उसका उद्देश्य लड़ाई करना नहीं होता है, उसका उद्देश्य होता है लड़ाई रोकना। और आप कितने पावरफुल तरीके से लड़ाई रोक सकते हैं, इट शोज योर पावर। तो अगर इंडिया ने आज तक मतलब 71 के बाद अगर लड़ाई नहीं हुई है, बीच में वो छोटे छोटे जो स्क्रिमिशेस होते हैं आप उनको छोड़ दीजिए, नहीं हुई है, तो उसका कारण ये भी है कि इंडिया हैज बिकम वेरी पावरफुल नेशन। पहले चाइना जरा जरा सी बात पे अंदर घुस आता था, अब वो अंदर घुसता है तो हम भी उसके दूसरी जगह पर घुस जाते हैं ना। दैट इज पावरफुल, दैट इज पावर। They have sufficient missiles to defend themselves. तो ये अब ये कैसे डेवलप किया था टेक्नोलॉजी, वो मैं नहीं जाऊंगा उस पर।
this again a very theoretical कि how technology is connected to the research. तो ये आप सबको मालूम है, it leads to the social prosperity, and then how the research and education should be interfaced. तो ये भी आप लोगों के लिए ये बहुत छोटी बात है. हाँ, coming to this, before I come to this technology, I want to tell you something which is related to climate. Climate के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो we always think about the pollution. कि ये pollution बहुत बढ़ रहा है, तो we should control the climate. Actually, climate is much more than that. If you recall, ये जो COVID आया था, it was only one virus. Only one virus. आप जब when you are digging the Antarctica, जो वहाँ पर आइस है वो millions of years पुरानी है, तो वहाँ पर there may be some viruses which are hidden because of the nature or because of the life. You are bringing them out. So when you are bringing them out, they may be 1, 2, 3, 4, 5, and we don't know how will they behave. Number one. Number two, आप shale oil जाके जमीन के अंदर 10 किलोमीटर कर रहे हैं. Again, there may be virus which may come out and again create threat to the humanity. और इसके अलावा आप जो जगह अपने स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं, मार्स पर भेज रहे हैं या दूसरे प्लैनेट्स या जो एस्ट्रॉइड आते हैं उनसे भी आ सकते हैं वायरसेस. तो थ्रेट दैट इज द क्लाइमेट थ्रेट. ये पोल्यूशन इज अ वेरी स्मॉल थिंग. ये तो ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये आ जाएंगे, फिर हाइड्रोजन व्हीकल भी आ जाएंगे, तो ये तो खत्म हो जाएगी, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन जो ये थ्रेट्स हैं, बायो थ्रेट्स, दे आर मच मोर डेंजरस. अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू. आप लोगों ने बहुत सारे ने सुना होगा चैट जीपीटी. माइक्रोसॉफ्ट है ना, चैट जीपीटी. तो चैट जीपीटी ने तो आप लोगों को ऑब्सोलीट कर दिया, टीचिंग प्रोफेशन को. Am I right? थ्रेट तो कर ही दिया. Am I right or not? आप लोग जो यस या नो बोल सकते हैं, थ्रेटन तो कर ही दिया आपको. Now थ्रेटन करने से, but there is one, they have found one weakness in the chat GPT कि वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसको नहीं आंसर कर पाता ठीक से. जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ऐसे टाइप होते हैं, उसको आंसर कर लेता है बहुत इजीली. तो बट ये तो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है. जो ये चैट जीपीटी है ये तो सिर्फ फर्स्ट वर्जन है, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये भी आएंगे. तो आप यू पीपल आर, आई मीन senior people will become educationalists, young people will become great teacher and professors, and so you have a threat to your profession. So how will you beat this threat? तो ये आप लोग जरूर सोचिएगा. और अभी हम जो ये जो कंप्यूटर यूज करते हैं ये तो डिजिटल है, 0101 वाला. तो अभी तो इसमें भी हम वी आर रीचिंग टू द प्लेटू, ऑलमोस्ट हो गया है. तो इसके आगे भी दूसरी टेक्नोलॉजी आएगी. दूसरी टेक्नोलॉजी जो आएगी तो फिर वो इसको ऑब्सोलीट कर देगी, और चैट जीपीटी की जो पावर है वो मतलब और बढ़ती जाएगी. और उसके बाद जो है, मतलब you see, I am going to live another maybe 10-15 years, but you people are going to live 50-60 years. So you have to think. So you should be up to date to the technology. You are reading history, fine, but you should know the technology, how the technology is evolving, और उस technology में आप कैसे कर सकते हैं. You see, the world richest person, Elon Musk, he is not a scientist. He has not done MSc or BTech or PhD or anything. He, I think, 12th pass or 12th fail, something like that. He is a self-learned person. So अगर if he can be self-learned, you also can be self-learned. तो आप लोग ये जरूर सोचिएगा कि how the chat GPT will evolve, or how can it help you. You see, you have to think not the destructive power but the creative power of chat GPT. Maybe you can design something around chat GPT. Like the other day my wife told me that Bhagavad Gita has been, chat GPT is able to answer all the questions of Bhagavad Gita. I mean, which are based on the Bhagavad Gita teachings. It is able to answer. So I asked a simple question, and within microsecond there was an answer that it is correct, like this is this. So possibly
the whole knowledge can be put there, and you will become the facilitator of the knowledge, or you will become the creator of knowledge, or you will come out with something which will, keep you relevant. It's a question of being relevant. So we all have to be relevant. Otherwise, we will die out. So with this, there are certain technology, but they are not required to be told. You have read it. If you want anything, I can dwell on that. But let's have a interactive session. And before we have interactive session, this this shloka has really motivated me along for many decades. So in this, Maharishi Patanjali has told one very interesting thing, that if you have a great purpose, some extraordinary task, and you feel you are limited to your capabilities and strength, then your mind, if you rightly use, will transcend all the limitations. It will expand in every direction, and one person will become 2,000 persons. And your dormant forces, your hidden forces, hidden knowledge, your the karma of past, positive karma of past lives will come back, and you will be able to create something new, which will be a result of your dream. So this is very relevant. तो शाहरुख खान ने एक पिक्चर में भी बोला है ना, शायद इसी बात को बहुत सिंपल एक डायलॉग में, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तो नेचर and the dormant forces, they're the same thing, which Maharishi Patanjali has told long back in much detail. So thank you.